हेलो फ्रेंड्स। अभी हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री की। इट्स अ मैथमेटिक्स, इट्स अ टॉपिक इन मैथमेटिक्स जिससे क्लास टेंथ में मोस्टली इन इंडिया इंट्रोड्यूस किया जाता है। एंड बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक है, एंड बड़ा ही इंट्यूटिव सा टॉपिक है। इनफैक्ट मैथ्स इटसेल्फ बड़ी इंट्यूटिव सी चीज़ है, बहुत लॉजिकल स्टेटमेंट्स पे चलती है, ज़्यादा कुछ नहीं होता है। बट मोस्टली हमें क्या कराया जाता है, इट्स जस्ट कि रटा दिया जाता है एंड दैट्स इट। एंड वी फील लाइक कि यार कुछ हो नहीं सकता, कुछ फाइंड नहीं कर सकते, कुछ लॉजिक नहीं है। Maths is all about using brain, but we are taught in a way that we don't use our brain. So this is going to be completely opposite of that. So if you're someone who don't like to use your brain, kindly skip this video, and this is not for you. But if you're someone just like my friend for whom I'm recording this video, who loves to use his brain, so yes, my friend, this video is for you. My friend, I mean, yeah, definitely you and others who like to use brain as well. So this is really special video. This is for someone really special. So uh, I'm not going to give the context here because that will be just distracting from the main thing. So it's just key. I'm this video is gonna show you that not you, my friend. Not I'm not talking to you right now. Uh, this is about larger audience. So this video is part of something key. You will see how easy things are in math. It's just if you have the brain thing. I mean, you are ready to use your brain thing. Obviously, you have the brain thing. Obviously, everyone does. So basically I'm going to start from the very scratch. uh, so we are going to start the trigonometry itself from the you know scratch as possible, and uh, I will just try to summarize the whole class 10 and following with class 11th and 12th, everything in trigonometry, and uh, in really less time, and I will try to attach all the logics with that. So uh, I hope you find it interesting. I mean, I just always see that like math is simple. It's really simple. Why? Because you just have to find the logic. It's not something that you have to memorize. There is almost nothing to memorize. I mean, yeah, the basic rules, the basic thing. Uh, it's just like a speaking. For speaking, what we need, we need is a few words and know the meaning of that. Then we know exactly how to speak, right? For example, in Hindi हमें पता है कि यार कौन से शब्द क्या बताते हैं, और सेम गोज इन इंग्लिश, एंड उन शब्दों का यूज करके वी कैन डू एंड I mean we can say whatever we want to say, right? So in the same way, maths is like that. अगर हमें maths के fundamentals पता है, which मोस्टली लोगों को नहीं पता होते हैं, एंड सो आई डोंट थिंक कि यहाँ पर कुछ भी ऐसा है जो याद करने की ज़रूरत है। एनीवेज, बहुत हो गई बातें, लेट्स गेट स्टार्ट विद दिस थिंग। सो फॉर reference I will be using NCERTs. These are the books I love, and these are the books I believe they have made me fall in love with maths the way I do. uh, Okay, love is a greater term. I do not love math, maybe. Okay, let's not talk about me, why I'm talking about myself. The thing is, this is your reference thing. I mean, if you want, so you can refer to the NCRT. I'm using the old NCRT because in the new NCRT, the syllabus is slashed. I don't know why. I mean, it was already okay, fine. I'm not going to comment on that. But yeah, whatever. So we are going to use the old one. Why? Just to make sure that we cover each and everything. So these video will be helpful for someone who is totally naive in naive and in mathematics and just enrolled in some kind of program, just like my friend did, where you need to know the basic mathematics. So uh, apart from that, others can also benefit. It's just if you find it suitable, just watch it. If you don't, then fine. Okay, so uh, this is the NCRT book. Uh, this is the class 10th NCRT as simple. So let's see. Whatever I'm going to teach is already there in this book. I'm just going to make sure that things are simple for you. That's it. Uh,
things are simple, but it's just I will explain the things you miss the scratch work. Okay, so trigonometry, as the name suggests, trigonometry. It's just the measure of triangle. Something. Metry means measure in simple English, and trigon. That's something related to three sides and triangle itself. So what's it? What it is? आखिर में है क्या trigonometry? So in trigonometry, we specifically deal with. Okay, I'm not going to start in a way what trigonometry is. Let's think it of in totally different way. I hope you're gonna find it interesting. So uh, let's say we have a triangle. We all have seen the triangles, right? कहीं ना कहीं, maybe कहीं नहीं तो this looks like a previous life. It's just I have to complete the circle itself. So yeah, fine. Basically, triangles to सबने देखे. But right now we will be restricting our uh, you know our study to specifically to a triangle which measures whose one of sides is 90 degree. Okay, एक साइड 90 डिग्री है, हम उस ट्राइंगल की बात करने वाले हैं दोस्तों. So my friends, have you read, you must be familiar with the concept of ratios, right? For example, let me give a simple recap about what ratios are. For example, you have 200 rupees. One of your friend has 400 rupees. So it's just that you and your friend's money are in ratio of 1 to 2. That means whatever you have one, your friend has twice of that, right? So this is about ratios. So now अगर आपके पास एक triangle है, ठीक है, and the triangle has one side measured 90 degrees, we will call it simply A, B, and C. A, B, and C, right? So इस ट्राइंगल में अगर हमें देखना है कि यार this side is one side, this side is another side, and this side is another side. So कभी सोचा जाए कि क्या हो कि हमारे पास ये एंगल पता हो, we will represent it with theta. We can represent it with any variable, any English alphabet or any Greek alphabet, any Hindi alphabet as well if you would like to. But it's just कि वो general में use नहीं होता है. So in general, it's just a variable. We don't know the values. We are denoting it with something that we don't know. Simple. We say it's theta because we don't know what exactly इसका value is. ठीक है. So this angle is theta. What is angle? Angle is just कि हमने कितना इधर से इधर sweep किया. ठीक है. I mean the sweep. This. This sweep here is what your angle is. Nothing else. Intuitively मैं बता रहा हूँ. Okay. So अपने पास कोई थीटा है, कुछ एंगल 90 है, दूसरा एंगल कुछ फाई है, एंड मैं बोलूँ कि यार ए बी upon BC, this is one of the ratio, right? AB upon BC, AB upon AC, this is another ratio. Then BC upon, okay, AC, this is third ratio, and anything else, yeah. AB upon BC we have written, AB BC, these two sides, and these two sides, all the possible ratios we have written, right? Now कि अगर हमें कहा जाए कि यार क्या इन रेशियोज के बीच में कोई रिश्ता है? इज देयर एनी रिलेशन? और is it even possible to find a ratio over here? I mean, the value of this ratio for any given theta. So uh, we just thought, okay, is it possible? So for simplicity, हमने इन ratios को less for safety मैं ऐसे इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ. For simplicity, हमने कह दिया कि AB upon AC, right? Which is क्योंकि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इफ यू आर अवेयर ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल एंड द पाइथागोरस थ्योरम, एज सेड फंडामेंटल्स में पता होना चाहिए. तो पाइथागोरस थ्योरम सेज कि अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, एंड देयर इज 90 डिग्री ओवर हियर, सो
दिस इज योर हाइपोटेनस, दिस इज योर परपेंडिकुलर, गिवन कि हमने ये थीटा माना है, क्यों, क्योंकि इसके हिसाब से परपेंडिकुलर होता है, दिस इज योर opposite or base. Okay, so yeah, I was talking about this triangle. So this is your base, this is your perpendicular, and this is your hypotenuse. This could be changed. Everything in maths is, very dynamic. So for this theta, this is your perpendicular, this is your verb, this is your hypotenuse. ठीक है, okay. And we know कि इस triangle में this is your hypotenuse का square is equal to your perpendicular का square plus base का square. यस, यहाँ पर स्क्वायर लिखा है तो इसका मतलब स्क्वायर की ही बात हो रही है, नथिंग एल्स. अगर ऐसा एक ट्रायंगल बना है तो इट्स जस्ट सेइंग कि अगर इस ट्रायंगल इस साइड का स्क्वायर बना लिया जाए ऐसे करके, एंड इस साइड का स्क्वायर कर लिया जाए ऐसे, तो वो जो हमारा थर्ड साइड है, दैट इज दिस साइड, एस स्क्वायर, एस वन स्क्वायर, एस टू स्क्वायर. सो व्हाट इट इज सेइंग कि इन दोनों साइड स्क्वायर्स को, इन दोनों का एरिया ऐड कर दोगे तो दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू दिस एरिया. देयर आर सेवरल प्रूफ्स, रियली इंटरेस्टिंग प्रूफ. गो फाइंड सम यूट्यूब वीडियोज ओवर हियर, यू कैन फाइंड रियली अमेजिंग प्रूफ्स अबाउट दिस कि ये कैसे हो रहा है. I'm telling you, this is really fun. Uh, in fact, if you have time and uh, you know the if you just keep on thinking in various ways, you yourself improve it. Or if you're someone who is little bit of crafty kind of person, who is artistic, you can just simply do one thing. You can take a triangle, make a triangle with particular lengths. Let's say this length is 2 centimeters, this length is 3 centimeters, this length is 4 centimeters. Now what you do is कि यार इस 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर करना है, यानी 9 सेंटीमीटर स्क्वायर का, यानी 3 by 3 का एक स्क्वायर बनाना, एक 2 by 2 का एक स्क्वायर बनाना, 4 by 4 का. आई एम जस्ट टेकिंग रैंडम एग्जांपल, यहाँ पर 4 आना जरूरी नहीं. ओके, 4 by 4 का एक स्क्वायर. ओके, मेक श्योर कि वो इस रूल को फॉलो कर रहा है. ओके, जस्ट मेक श्योर कि वो इसमें फॉलो कर रहा है, यानी कि हाइपोटेनस की ऐसी वैल्यू लो जो परपेंडिकुलर प्लस बेस इससे स्क्वायर आ रही है. ओके, फॉर एग्जांपल actually make any triangle which is of 90 degree. This is all you have to do. ये सब करने की ज़रूरत है. अगर ये कर पा रहे हो तो कंपास एंड रूलर उठाओ, एक 90 डिग्री का ट्रायंगल बनाओ. ठीक है, एक लाइन बनाओ, जितने भी सेंटीमीटर के बनाने, कुछ इजी नंबर चूज करना जिसके हिसाब से ये भी इजी नंबर है, पता लगा यू फाइंड इट डिफिकल्ट, तो कुछ इजी नंबर ये चूज कर लिया, बस ये लेंथ चूज करनी है. एक 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट किया, दूसरी लेंथ ये चूज करनी है, फिर तीसरा अपने आप मिला देना है. अब जो तीनों की वैल्यूज है, लेंथ वन, लेंथ टू, लेंथ थ्री, इस लेंथ वन का स्क्वायर बनाओ, लेंथ टू के स्क्वायर बनाओ, लेंथ थ्री का स्क्वायर बनाओ. देखो क्या ये दोनों के स्क्वायर का एरिया पूरी तरीके से स्क्वायर में फिट किया जा सकता है. यू विल श्योरली फाइंड इट अमेजिंग एंड रियली इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज कि हाँ ये फिट हो जाता है. ओके, दिस इज ऑल अबाउट पाइथागोरस थ्योरम. बैक टू द थिंग. सो लेट्स फॉर सिंप्लिसिटी, हम लोग कहाँ पर थे, हम लोग रेशियोज पे थे. हम ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी, तीनों रेशियोज की बात कर रहे थे कि इन रेशियोज के साथ खेलेगा. लेट्स प्ले इन मैथ्स, वी जस्ट प्ले. सो लेट्स प्ले. सो हमने कह दिया कि ए बी अपॉन ए सी is nothing but equal to sine of theta, sine of theta. Okay, and हमने कह दिया कि बी सी अपॉन ए सी इज नथिंग बट कोसाइन ऑफ थीटा. ठीक है, एंड फाइनली हमने कह दिया कि ए बी अपॉन बी सी इज नथिंग बट इक्वल टू tangent ऑफ थीटा. आई मीन कोई भी नाम रख सकते हैं, मैंने ये नाम रखेंगे. एग्जैक्टली जानना है कि ये नाम ही क्यों रखे जा रहे हैं, यही क्यों होता है ट्रिग्नोमेट्री में, यू कैन फाइंड इट आउट माय फ्रेंड. साइन का नाम कहाँ से पैदा हुआ, आर्यभट्ट ने इसको पहली बार साइन, some really interesting word was here. Give me a moment. Yep, ardhjay, that means half called, what called itself is
एक सर्कल बनाओगे तो ऐसा करके जो भी बनता है, दैट इज योर कॉल्ड. So अर्ध जैसे जय, जैसे जीवा, and then Arabic translation, you know the history. It's simple history. You can find it out why exactly this is called sine theta. But in mathematics, we deal with the more prominent concept, not with the name. It's just कि ये popular name है, it's popular. What we want to deal is कि ये ratios आपस में related हैं. And इन ratios का इस angle के साथ क्या रिश्ता है? अगर है तो. This is what we are interested in. And that is what maths is. Just asking some questions and finding if there is something funny in it. Okay, so I just introduced you to three trigonometric ratios. One is sine theta, one is cosine of theta, that third one is tangent of theta. Okay, okay. So and since हमने इन ratios को ऐसे लिखा है, so definitely it's possible कि AB upon AC की जगह हम लोग AC upon AB लिखते हैं, right? BC upon, sorry, what's that? या BC अपॉन AC की जगह हम लोग AC अपॉन BC लिख दें. ठीक है, मतलब वी राइट एयर AC AC नहीं सॉरी ए बी अपॉन AC. ओके, आई एम सॉरी, ए बी अपॉन AC, मतलब दिस साइड को डिवाइड कर दिया दिस साइड से, विच कम्स आउट टू बी एक रेशियो. ठीक है, और फिर हम इसका इनवर्स लिख सकते हैं. इनवर्स मतलब इसका जस्ट बेसिकली इसका ओके फाइन, बेसिकली रिवर्स कर दो उनके places को. I'm not going to use words like in this for now. So it's AB upon AC, so we have done what? AC upon AB. ठीक है, मतलब this side divide by this side का उल्टा. ठीक है, जैसे 1:2 की जगह 2:1 लिख देंगे. तो दैट इज व्हाट वी हैव डन. एंड सिमिलरली हमने कर दिया AB अपॉन BC को लिख दिया BC अपॉन AB. तो इनके भी कुछ नाम दे दिए, राइट? क्या हमने कहा कि now I'm writing it very properly over here. Sine of angle theta is equal to your uh, perpendicular upon hypotenuse, which is equal to AB upon AC. Okay, in the same way we have others, you can see here. Okay, ये side opposite to angle A ले रहे हैं, तो side opposite to angle A, okay, angle A के opposite मतलब इसके अगेंस्ट कौन सा साइड है? दिस साइड, दिस इज योर परपेंडिकुलर, एंड दिस इज योर साइड अपोजिट टू एंगल सी, मतलब एंगल सी से अपोजिट साइड. दिस इज योर दिस, या फिर एंगल ए के एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट मतलब बगल वाला साइड. ठीक है, तो ये हो गया ए बी. ऐसे भी लिख सकते हैं. तो साइन ऑफ एंगल इज नथिंग बट परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज बीसी अपॉन एसी इन दिस ट्रायंगल ए बी सी, इन दिस ट्रायंगल बीसी अपॉन एसी. Similarly, cosine of angle is what? AB upon AC, that is adjacent divided by hypotenuse, इसका ratio. Then tangent of angle A is, यानी tangent of angle A is your BC upon AB, that is your perpendicular divided by your adjacent side. Okay. Then cosecant, that is cosec. We often call it cosec of theta. So cosecant of angle A is nothing but 1 upon sine of angle A. Okay, why 1 upon sine of angle A? Because cosecant of angle A is nothing, yeah, cosecant of angle A is nothing but just the opposite of this. जैसे BC अपॉन AC को हमने लिख दिया AC अपॉन BC, तो AC अपॉन BC, तो उसको अगर हम 1 अपॉन साइन ए लिख दें तो दैट इज फेयर, राइट? आई मीन, एंड सिमिलरली सीकेंट कोटेंजेंट आगे कैसे, एक बार दिखा देता हूँ. साइन ऑफ एंगल थीटा इज AC अपॉन AC, तो अगर हम AC अपॉन AB लिखना चाहें तो क्या होगा? दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ऑफ एंगल थीटा, जो कि हो जाएगा 1 अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, जो कि हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. एंड वी नो कि जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलते हैं तो जस्ट रिवर्सेस दिस थिंग. दिस इज गोइंग टू हैपन इज हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है? AC, और परपेंडिकुलर हमारा क्या है? AB. तो यहाँ से हमारा AC अपॉन AB आया. इसका नामकरण कर देते हैं, तो इसका नाम रख दिया हमने कोसेकेंट ऑफ एंगल थीटा, या फिर एंगल जो भी है. इसी तरीके सीकेंट है, इन्वर्स है किसका? कोसाइन का. वो साइन का रिस्पेक्ट था, ये कोसाइन का इन्वर्स है.
ये कोटैंजेंट टैंजेंट का इन्वर्स, बात खत्म। सारे के सारे रेशियोज अवेलेबल हमने डिफाइन कर लिए। देखो इन्होंने भी वर्किंग दिखाई है। ऑब्जर्व दैट tan इज इक्वल टू ए बी सी अपॉन, हाँ वन इंटरेस्टिंग थिंग, अगर वी हैव दिस रेशियो, दिस इज ए बी अपॉन ए सी, दैट इज साइन, एंड बी सी अपॉन ए सी, दैट इज कोसाइन, तो इन दो रेशियोज की मदद से हम बाकी सारे रेशियोज निकाल सकते हैं। यू कैन जस्ट सिंपली वर्क इट आउट, इट्स सिंपल थिंग। सो दिस वाज अबाउट द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब हम इनको सिंपल वे में भी लिखते हैं। लिखते क्या है? साइन थीटा, कोसाइन थीटा को कॉस थीटा, ठीक है, टैंजेंट थीटा को टैन थीटा। इजी पड़ेगा, कौन इतना लंबा बार बार बोलेगा? टैंजेंट ऑफ थीटा, कोसाइन ऑफ थीटा, सीकेंट ऑफ थीटा, नहीं पसंद करोगे ना। साइन थीटा, कोसाइन थीटा, टैन थीटा, या साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा, सिंपल। साइन थीटा का इन्वर्स होता है कॉसेक थीटा, राइट, या कॉसेक थीटा यानी कोसेकेंट थीटा। कॉसेक कॉस थीटा का इन्वर्स होता है सेक थीटा, और टैन थीटा का इन्वर्स होता है कॉट थीटा। नाउ थिंग इज कि ये दोनों हैं तो आप इसको निकाल सकते हो, और ये तीनों हैं तो आप सिंपली ये तीनों निकाल सकते हो। तो ऑल यू नीड इज कि ये किसी भी केस में बस आपको ये दोनों चाहिए, these two, right? Okay, is this all clear? I hope it's clear. Okay, so remember one thing, साइन ए अगर यह साइन थीटा है तो इसका मतलब है साइन ऑफ एंगल थीटा, ठीक है। ये इसका एब्रिविएशन है, ऐसा मतलब लेना कि साइन थीटा इज इक्वल टू साइन मल्टीप्लाई बाय थीटा। साइन का खुद का कोई मतलब नहीं है। साइन जिस एंगल का निकालोगे ऑफ दिस एंगल, वो डिपेक्ट करेगा रेशियो को, कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस की बात हो रही है, ठीक है। तो ये मीनिंगलेस है, समझ रहे होगे तो समझ रहे होगे क्या बोल रहा हूँ। ओके, कि बेसिक सी एक एक्सरसाइज थी जो कि हमने इंट्रोड्यूस करी। अब ऑब्वियस बात है, इस पे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं? तो क्वेश्चन बन सकते हैं कि आपको ट्राइंगल दे दिया गया, उस ट्राइंगल के साइड्स दे दिए गए, राइट एंगल ट्राइंगल दिया गया, उसके साइड्स ए बी सी दे दिए गए, आपसे बोला जा रहा है सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालो, ठीक है। या फिर एक ट्राइंगल, आपको दो रेशियोज दे दिए गए, ठीक है, और कहा गया ट्राइंगल का मेजर निकालो, या दो रेशियोज दे दिए गए, कहा गया बाकी चीज़ों का रेशियो, बाकी रेशियोज को निकालो। आई थिंक दिस इज फेयर इनफ एक्सरसाइज। अगर आपको बेसिक ये पता है कि हाँ साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, वो एक रेशियो होता है, हमने उसको रेशियो को नाम दे रखा है, ठीक है। हम बस एक्सप्लोर करना चाह रहे थे रेशियोज और एंगल के बीच में रिलेशन, जो कि हम अगले सेक्शन में जाएंगे तो रिलेशन एक्सप्लोर करेंगे। ये तो नामकरण कर दिया बीच में कि हाँ साइन थीटा और कॉस थीटा कह देते हैं, क्यों? क्योंकि जस्ट इजी पड़ेगा कहने में अभी के लिए, सिंपल पड़ेगा उसको याद करने में, सिंपल पड़ेगा उसकी बात करने में, राइट। कौन मतलब, हम लोग आज के समय, एग्जाम्पल देता हूँ यार, किसी का लंबा चौड़ा नाम हो, ठीक है, तो उसके नाम को हम लोग क्या करते हैं, जस्ट वी से बार बार उसके नाम को ही उसको शॉर्ट कर देते हैं, या फिर कोई उसके लिए अलग सा दूसरा वर्ड यूज कर लेते हैं उसके लिए, एक सिंपल इजी टू यूज वर्ड, राइट। बल्कि मेरे फ्रेंड की तो बड़ी खास आदत है, वो जरूर दूसरों के लिए एक से एक नाम यूज करता है, आई मीन चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए। तो आई सर आपके लिए तो दैट्स इजी थिंग, राइट। बस यही है यहाँ पर फंडा, रेशियोज बार बार बोलने पड़ेंगे, ए बी बाई बी सी, ए बी बाई ए सी, कौन बोले? तो सिंपली साइन थीटा, साइन नाम दे दिया ना, साइन थीटा को भी साइन ऑफ एंगल थीटा बोल सकते हैं, साइन थीटा। जैसे कि आई कैन गिव यू सेवरल एग्जांपल्स। एक है समवन, समवन ही कॉल्स जेपी, देयर इज समवन ही कॉल्स चेरी, देयर इज समवन ही कॉल्स ओके, आई can't remember anymore अभी के लिए, but yeah, you get the point. So ओके, सो इफ दिस इज क्लियर, अब देखते हैं इन रिलेशंस को।
एंड ऑब्वियसली ये देखो सारी एक्सरसाइजेज यही है और कुछ नहीं है। दे रखा है एक ट्राइंगल दे रखा है, राइट एंगल है बी पे, ट्राइंगल के साइड दे रखे हैं, वो लाइन निकालनी, ठीक है। वैसे ही tan पी कॉट आर, हाँ अब उसका सब्ट्रैक्शन, उसका डिवीजन, उसका मल्टीप्लिकेशन, तो बेसिक चीजें हैं ना। तुमको बेसिक चीजें पता चल गई निकालना, उनके साथ खेलना तुम्हें आता है, उनको जोड़ो उनको घटाओ, उनके साथ जो करना है करो, इट्स सिंपल थिंग टू डू, राइट। सी कॉट थीटा दिया हुआ है तो इवैल्यूएट करना है। कॉट थीटा दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या, कॉट थीटा दिया तो मतलब टैन थीटा दिया, टैन थीटा दिया मतलब तो साइन थीटा और कॉस थीटा दिया, और साइन थीटा और कॉस दिया हुआ है तो मतलब सब कुछ दिया हुआ है, और सब कुछ दिया हुआ है तो यहाँ तो साइन ही थीटा और कॉस थीटा दिया, तो ईजी है इसको निकालना, कोई बड़ी चीज़ नहीं है ना। स्क्वायर करना है, कुछ नहीं करना है। ऐसे यहाँ पर कुछ टैन दे दिया गया है, बाकी रिलेशन निकालना। आई थिंक दिस इज फेयरली इजी थिंग टू डू, राइट। ओके, अब हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। इसको रटने में बड़ी प्रॉब्लम होती है सबको, मैं तो सीधे जा रहा हूँ बताने, क्यों फालतू में दुनिया भर के लॉजिक की बात करना, क्या रखा है, सिंपल पढ़ाते हैं, सिंपल बात करते हैं। ये देखो ये रहे आपके रेशियो, याद कर लो। साइन ऑफ एंगल ए, अगर एंगल ए 0 डिग्री है तो साइन ऑफ एंगल ए 0 होगा, ठीक। मतलब कहने का क्या है वो बता देता हूँ कि भैया एक ट्रायंगल है ऐसा, ठीक है, और ये एंगल ए है मान लो, ए बी सी, और ये 90 डिग्री का एंगल है ना। तो अगर साइन ऑफ एंगल ए की बात करें, साइन ऑफ ए की बात करें, और अगर एंगल ए इज इक्वल टू 0 डिग्री कर दे, ठीक है, तो हमारा साइन ऑफ ए भी 0 के बराबर आ जाएगा। कहने का मतलब कि हमारा ये रेशियो यानी बी सी अपॉन ए सी, ये रेशियो 0 के बराबर आ जाएगा, बस इतनी सी बात है, ठीक है। मतलब रेशियोज की वैल्यू बताई जा रही है। वैसे ही यहाँ साइन ऑफ 30 डिग्री आ जाएगा 1/2, यानी वो सेम रेशियो हमारा ट्राइंगल का बी सी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस की वैल्यू 1:2 हो जाएगी, है ना। यानी कि परपेंडिकुलर अगर 1 है तो हाइपोटेनस 2 होगा, इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं। 45 डिग्री होगा तो परपेंडिकुलर अगर √1 है तो हाइपोटेनस उसका √2 हो जाएगा, √2 ऑफ दैट वैल्यू हो जाएगा। साइन 60 की बात करें तो हाइपोटेनस अगर एक्स है तो अगर हम उस एक्स को √3 टाइम्स वाई के फॉर्म में लिख पा रहे हैं तो उसको हम 2 टाइम वाई के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ओके, दिस वन इज लिटिल ट्रिकी, राइट। एक्सप्लेन कर दूं, सोचना है एक बार कैसे होगा ये। यानी अच्छा ओके, सोच लो एक बार। वैसे अगर साइन ऑफ 90 डिग्री की बात करें तो हमारा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो 1 हो जाएगा, यानी क्या होगा, 1, यानी 1:1, या समथिंग लाइक। मैं अब सोच रहा हूँ साइन 30 वाला, या फाइन, ओके। ऐसे ही कोसाइन टैंजेंट कॉसेक सेक, नॉट डिफाइंड क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है जब डिफाइन नहीं कर पा रहे थे, जो हमें नहीं पता हो वो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, कि मतलब वो रेशियोज ऐसे अजीब से घुस गए हैं कि वो समझ में नहीं आता। जैसे टैन का एग्जांपल ले लो, टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, और टैन 90 की बात हो रही है, तो टैन 90 के केस में, अच्छा टैन थीटा का एक सिंपल रिलेशन होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। कैसे होता है ये निकाल सकते हो, अगेन वही, कुछ नहीं करना है। साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर ऑफ हाइपोटेनस रख दो, डिवाइड कर दो उसको बेस अपॉन हाइपोटेनस पर, उल्टा कर दो, यू विल कैलकुलेट की इन दोनों का जो रेशियो आ रहा है, इन दोनों मतलब रेशियोज का रेशियो जो आ रहा है वो आ रहा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो कि कुछ नहीं टैन थीटा होता है। इस वजह से टैन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो 1/0 निकाल पाओगे कभी, अभी नहीं निकाल पाओगे, इसीलिए अनडिफाइंड बोल देना, बात खत्म। बस ये है इस चैप्टर का इतना पार्ट, खत्म हो गया। इसी के साथ ये चैप्टर, ये वैल्यूज याद कर लो, खत्म है चैप्टर। बट अगर दिमाग में खुजली हो रही है, वाई आर जी साइन 0 0, वाई इज साइन 31/2, वाई इज साइन 45 दिस, वाई इज साइन 60 दिस, वाई इज कॉस दिस, वाई इज टैन ए समथिंग लाइक दैट, इतने ढेर सारे वाइज आ रहे हैं, तो माय फ्रेंड यू आर ऑन द वेरी राइट ट्रैक, एंड this is where you will learn to think in a way you can answer your whys, जो क्वेश्चन तुम पूछ रहे हो खुद को। आओ निकालते हैं, सिंपल से स्टार्ट करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 45 डिग्री से, बड़ा ही सिंपल है। आओ देखते हैं कैसे सिंपल है। एक ट्रायंगल दिया,
एक 90 डिग्री हो गया, ठीक है। इस ट्राइंगल का नाम हमने ए बी सी रख दिया। ओके, ए बी सी रख दिया। ये एंगल हम मान ले रहे हैं 45 डिग्री, ठीक है। तो साइन ऑफ 45 डिग्री क्या हो जाएगा इस केस में, बी सी अपॉन ए सी। अगर पूछें वो क्या होगा तो दिस पार्ट अगर चाहें तो लोग स्किप भी कर सकते हैं, बट अगर समझना है तो समझ भी सकते हैं। साइन 45 बी सी अपॉन ए सी क्यों होगा, क्यों होगा नहीं, सॉरी, साइन बी सी अपॉन ए सी जो है उसकी वैल्यू क्या आएगी। अब देखो मैंने कहा था ना हम रिलेशन फाइंड करने की कोशिश करेंगे, तो हेयर वी आर फाइंड, देखो एक रिलेशन जैसे हमने निकाला था रेशियोज का रेशियो, कैसे अ, दो रेशियोज यानी ए बी, इस केस के हिसाब से देखें तो बी सी अपॉन ए सी और ए बी अपॉन बी सी, सॉरी ए बी अपॉन ए सी, है ना, बी सी अपॉन ए सी एंड ए बी अपॉन ए सी, इनका जब हमने रेशियो निकाल लिया, इन्हीं का रेशियो निकाला, तो हमें क्या मिल गया, तीसरा रेशियो जो कि होता है नथिंग बट दिस डिवाइडेड बाय दिस। तो मतलब कि वी कैन फाइंड वन ऑफ अदर कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो फ्रॉम टू गिवन रेशियो। दिस इज व्हाट वी डिस्कवर, ऐसा एक रिलेशन डिस्कवर किया। अब हम रिलेशन डिस्कस करेंगे और प्रोमिनेंट रिलेशन जो ट्रिग्नोमेट्री में हम करने की कोशिश करते हैं कि इन एंगल्स का इन रेशियोज के साथ क्या कोई नाता है। ऐसा हो सकता है कि अगर ये 45 डिग्रीज हो तो ये जो साइड्स हैं ये कुछ ऐसे हो जाएं कि कुछ पर्टिकुलर वैल्यू दे। सो साइन 45 हमें नहीं पता क्या होता, राइट, बट वी कैन फाइंड इट आउट। व्हाई? क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, तो ये क्या होगा, हमें पता है ये 180 होता है। अब ये 180 क्यों होता है वो अपने आप में एक अलग कहानी है, उसको भी जान सकते हो ऐसे ही सिंपल क्वेश्चंस पूछ के, पूछो जानो। बट अभी के लिए हम एकदम फैलते नहीं चले जाएंगे, वरना अगर इफ्स के इफ्स को ढूंढेंगे तो फिर हम लोग सिर्फ इफ्स करेंगे और एक्चुअली कभी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचेंगे। तो फिलहाल के लिए दिस इज ऑल्सो गोइंग टू 45 डिग्री बिकॉज द सम ऑफ ऑल थ्री शुड बी 180, तो 45 प्लस 45 इज 90, 90 प्लस 90 इज 180, राइट। तो दोनों साइड्स बराबर है, ये साइड है, तो इसको हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, है ना, नाम सुना होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। और आइसोसेलेस ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी भी होती है, क्या, उसके दो साइड्स जो होते हैं वो बराबर होते हैं, दिस साइड एंड दिस साइड, बस इस साइड का साथ लोचा होता है। अब अगर दो साइड नहीं है, मतलब मान लो ये साइड ए है तो ये भी साइड ए होगा, अग्री करते हो ना इस बात से। तो क्या अब हाइपोटेन्यूस नहीं फाइंड किया जा सकता क्या, ए के लिए किया जा सकता है ना, किससे किया जा सकता है, याद करो एक महान गणित के महान व्यक्ति के नाम को, जिनके नाम से बहुत ज़्यादा लोग परेशान हुए हैं बचपन में शायद, गणित के न्यूटन साहब एक तरीके से वो, एटलीस्ट उन्हीं के टाइम पे पढ़ाए जाते हैं साथ साथ। यस, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि हमारा हाइपोटेनस जो कि इस केस में एसी है, उसका स्क्वायर करोगे तो वो बराबर आएगा इस साइड के स्क्वायर से प्लस इस साइड का स्क्वायर, ठीक है। इस साइड का स्क्वायर ए स्क्वायर है, इस साइड का भी स्क्वायर ए स्क्वायर, तो ए सी का स्क्वायर क्या होगा, वो हो जाएगा ए सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए स्क्वायर का अंडर, जो कि हो जाएगा अंडर रूट 2 टाइम्स ए, है ना। तो ये क्या हो गया, अंडर रूट 2 ए, कोई तकलीफ, ऑब्वियसली नहीं। अब ये पता चल गया, ये पता चल गया, तो और रेशियो पता कर लेते हैं ना, क्या जाता है, रेशियो की सबसे अच्छी बात ये सब कुछ कैंसिल आउट कर लेते हैं कॉमन में, तो आओ बस इसका आनंद लेते हैं। तो साइन 45 जो था वो हमारा बी सी अपॉन ए सी, यानी कि दिस अपॉन दिस था, जो कि हो गया 1 अपॉन रूट 2 ए, 1 1 ए कैंसिल, दिस इज गोइंग टू बी 1 अपॉन अंडर रूट 2। हेलो, व्हाट द हेक, हमने सिंपल कुछ बेसिक फंडामेंटल का यूज करके अभी अभी
ये पता कर लिया कि कभी भी हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया है और उसका एक एंगल 45 डिग्री है, तो उसके साइड्स का रेशियो, उसके परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, उस साइड एंगल के लिए उसका जो परपेंडिकुलर है और जो हाइपोटेनस है, उसका जो रेशियो आएगा वो हमेशा 1/√2 आएगा। इजंट इट फन? नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कहाँ अप्लाई कर लेंगे। कर लोगे मेरे भाई, अप्लाई करोगे। कहाँ अप्लाई करोगे? जब यू आर गोइंग टू यूज समथिंग, यू हैव सम रियली बिग प्लेस एंड तुम्हें वहां पर कुछ ऐसा जिसको तुम अप्रोक्सीमेट कर सकते हो इस ट्राइंगल के आसपास, और तुम्हें दिख रहा है कि हाँ तुम, मतलब मान लो तुम किसी बिल्डिंग के पास खड़े हो, तुम उसकी हाइट पता करनी है, अप्रोक्सीमेट करनी है, ठीक है? तो ऑब्वियस बात है, बिल्डिंग से खड़े हो तो यू नो इट्स ऑब्वियस कि तुम रोड से प्लेन होगा, 190 का एंगल बनाएगा। अगर तुम समहाउ अप्रोक्सीमेट कर लो कि तुम उससे इतनी दूरी पे खड़े होगे, तो जब उसके टॉप को देखो तो वो लगभग लगभग 45 डिग्री का एंगल बनाए। ओके, तो नाउ तुम सिंपली लिख दोगे साइन ऑफ 45 इज इक्वल टू हाइट ऑफ योर टावर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। ओके, नॉट हाइपोटेनस, लेट्स नॉट यूज हाइपोटेनस दिस टाइम क्योंकि साइन काम नहीं आएगा, बट tan तो काम आएगा। tan 45 इज यूज हाइट ऑफ योर टावर डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस, जितनी दूर तुम उससे खड़े हो, डिस्टेंस। tan हमें पता है होगा क्या होता है, अभी अभी हम पता कर लेंगे। तो हाइट ऑफ टावर हम पता कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि डिस्टेंस को तुम ऐसे भी नाप सकते हो ना माय फ्रेंड। क्या करना है, मोबाइल पे गूगल फिट का ऐप खोलना है, यहाँ से लेके यहाँ तक जॉगिंग करना है, यू विल गेट द अप्रोक्सीमेट आइडिया कि कितना डिस्टेंस है। सिंपल, इजी, फाइन, फिर तो आज के बाद टेंशन नहीं लेने का, कोई भी बिल्डिंग दिखे तुरंत ऑन द स्पॉट उसकी लंबाई नाप लेने का। हाँ, थोड़ा सा गधों वाला काम है, चलते फिरते कौन ही किस बिल्डिंग की हाइट नापता है, बट ट्रस्ट मी माय फ्रेंड, यूजफुल भी है। कई बार ऐसी स्ट्रक्चर्स हैं जिनके बारे में आपको पता करना है कितना है लंबा है, उसको नापना है, तो दीज आर द टूल्स वी यूज। वो जो आपको गूगल रिजल्ट्स बड़े एक्यूरेट आंसर आज के समय दे देते हैं, ट्रस्ट मी, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स का नाप मुझे नहीं लगता किसी ने फीता लेके नापा होगा। So these are the ways, these are the interesting ways where maths are. Okay, so साइन ए, यानी कि अभी अभी हमने एक रेशियो का एक हैक निकाल लिया कि अगर एंगल 45 है, गिवन एंगल 45 के लिए ये रेशियो हमेशा 1:√2 की वैल्यू पे ही रहेंगे, हमेशा 1:√2 के ही रेशियो में रहेंगे, हमेशा इसी प्रपोर्शन में रहेंगे। इजंट इट फन? कि मतलब ये लाइन का √2 टाइम्स हमेशा ये लाइन रहेगा। इजंट इट? अगर ये ए है तो ये √2 टाइम्स ए होगा। इट्स फन टू वॉच, राइट? ओके, इन द सेम वे अब हम चाहें तो कॉस ऑफ थीटा भी निकाल सकते हैं, राइट? कॉस ऑफ 45 is nothing but AB upon AC, which turns out to be again 1/√2 into cos of 45. AB upon AC is this ratio। ये तो नाम है, बट अल्टीमेट हमने क्या निकाला? एक रेशियो का और फिक्स वैल्यू निकाल लिया गिवन एंगल के लिए, साइन 45 के लिए। सिमिलरली माय फ्रेंड्स, यू कैन डू विद द 30 डिग्रीज, 60 डिग्रीज, एंड जितने भी अभी तुमने याद किए, 0 डिग्री, 90 डिग्री, एवरीथिंग। 30 डिग्रीज का मैं एक केस दिखाता हूँ। अच्छा, टैन थीटा तो आप निकाल ही लोगे ना, वो तो सिंपल है, बस साइन और कॉस को प्लग कर देना। तो 1/√3 डिवाइड बाय 1/√2 इज गोइंग टू बी 1, हमेशा 1 होता है। कहने का क्या मतलब हुआ कि जितना ये होगा उतना ये होगा, अगर तुम 45 के एंगल पे खड़े हो। तो अगर तुम किसी बिल्डिंग की हाइट को जानना चाह रहे हो, तो उससे इतनी दूरी पे खड़े हो जाओ कि उसका टॉप 45 डिग्री पे दिखे, तुम्हें एंगल बनाए। तो फिर मेरे दोस्त, तुम्हारी डिस्टेंस जितनी उस टावर से होगा उतना ही उसकी हाइट हो। क्या बात है! और इसका इंटरेस्टिंग चीज, अगर यह सूरज इस अलाइनमेंट में है कि वो उसकी धूप की वजह से इसकी प्रोजेक्शन यहाँ पर आ रही है, और वो अलाइनमेंट बाय गॉड कुछ तरीके ऐसा है कि वो ऑब्वियसली तुम कैलकुलेट कर सकते हो कितना अलाइनमेंट होना चाहिए, कितने एंगल पे होना चाहिए सूरज, वो भी कैलकुलेट कर सकते हो आप। तो फिर जो तुम्हारी परछाई की लेंथ होगी वो बिल्डिंग की लेंथ के एकदम बराबर होगी। तो तुम इससे क्या कर सकते हो? तुम इससे सूरज में जाके खड़े होकर अपने एंगल का हिसाब लगा के अपनी खुद की हाइट जमीन पे नाप सकते हो बिना लेटे। दिस इज वन पार्ट ऑफ मैथ, कोई और नहीं कर सकता, सिर्फ मैथमेटिक्स कर सकते हो। आओ चलो आगे चलते हैं।
30 डिग्री पे, 60 डिग्री पे। भैया देखो फिर से एक ट्राइंगल ले लेना है। शुरुआत तो हमारी ट्राइंगल से ही हो रही है, कुछ और हो या ना हो। ये हो गया जो 30 डिग्री मान लो। ये हो गया 90 डिग्री। 90 + 30 90 हो, सॉरी 120 होता है। 120 180 में से घटा दोगे तो ये 60 आ जाएगा। ये 60 है, ये 30 है, ये 90 है। अब मैं परेशान होने वाला हूँ थोड़ा सा, बट नहीं होगा। एनीवेज, और हमें पता करना है कि इसका रेशियो क्या है, या इसका रेशियो क्या है। थोड़ा थोड़ा हम क्या करेंगे, हम इसके बगल में एक ऐसा सिमिलर एंगल रिफ्लेक्ट करा देंगे, इसकी रिफ्लेक्टिंग मिरर बनाएंगे। कोई दिक्कत, क्यों इसका रिफ्लेक्शन है ये, तो ये एंगल 30 है, तो ये एंगल भी 30 है। मेक सेंस है ना? डेफिनेटली मेक। ये लेंथ कितनी है, उतनी ही ये लेंथ। ये एंगल 60, तो ये एंगल भी 60 होगा, है ना? ओके, ये 30 है, ये 30 है, ये जो भी है, तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो ये लेंथ और ये लेंथ बराबर हो गया अभी अभी, और ये लेंथ तो कॉमन हो गई। मुझे नहीं पता मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा खो सा गया हूँ, रुको मैं वापस आता हूँ। अब हमें निकालना है दिस, थोड़ा नामकरण कर लेते हैं, थोड़ा कम खोएंगे, BC/AC को, है ना दोस्तों? हम्म, हम्म, दोस्तों थोड़ा गलत पंगा ले लिया है, इससे काम नहीं बनेगा। 30 डिग्री नहीं फाइंड करते हैं, 60 डिग्री फाइंड करते हैं। नहीं नहीं, काम बन जाएगा, अभी दिखाते हैं कैसे। ये मैथ का थोड़ा प्रॉब्लम होता है, चीज़ें सोचनी ज़्यादा पड़ जाती है। ये सिखाता है एक गलत रास्ता कितना ज़्यादा तकलीफ दे सकता है। तो फिर ये 30 हो जाएगा, कोई तकलीफ इसमें नहीं होगी। 3 9 9 18। अब रिफ्लेक्शन बना लो। अब ये रिफ्लेक्शन देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। ये 60 है, तो ये रिफ्लेक्शन है, तो ये भी 60 होगा। रिफ्लेक्शन है तो ये भी 30 होगा, ये तो 90 है। ये 30 + 30 60, 60 60 60। तो ये हमारा ये जो ट्राइंगल है ABC, और इसका नाम भी करेंगे, तो ट्राइंगल CAD, ट्राइंगल CAD इज नथिंग बट इक्विलेटरल ट्राइंगल। और ये सब चीज़ें जो मैं आपको बड़े प्रेम से बता दे रहा हूँ, सब आपको प्रूफ करना पड़ता है जब आप प्रूफ लिखते हैं, बट अभी आपको प्रूफ नहीं करना, अभी सिर्फ समझना है। तो ये ट्राइंगल हो गया कैड, ठीक है? तो ये हो गया, और 60 60 इक्विलेटरल ट्राइंगल, मतलब ये साइड ये साइड ये साइड बराबर, कोई तकलीफ होनी भी नहीं चाहिए। अब हम कह दें, क्या कहते हैं, इसकी लेंथ ले लेते हैं, ये AD लेंथ को 2A ले लेते हैं। भैया 2A ही क्यों लेना है? अरे भैया हमें 2A नहीं लेना था, हमें असल में इस लेंथ को A मानना था। ये लेंथ A है, तो ये लेंथ 2A अपने आप हो जाएगी, कोई तकलीफ नहीं। ये भी 2A हो गई, ये भी 2A हो गई, कोई तकलीफ नहीं। गुड, बस पता करने के लिए बचा है ये, क्यों? क्योंकि ये A है तो ये 2A हो गया, हमें पता है। क्यों? क्योंकि ये भी 2A, बस ये पता करने के लिए बचा। हमारे पास हमारा प्यारा पाइथागोरस थ्योरम, जो कहता है 2A का स्क्वायर इज इक्वल टू A का स्क्वायर प्लस ये भी जो भी चीज़ है, यानी कि BC का स्क्वायर, 4A² माइनस A² इज इक्वल टू BC स्क्वायर। तो BC आ जाएगा 4A - A, 3A², कॉमन उठा लोगे, मैं कॉमन बोल रहा, अंडर रूट में डाल दोगे तो √3A आ जाएगा, कोई तकलीफ नहीं। तो ये हो गया √3A। तीनों लेंथ पता? हाँ पता।
साइन 60 निकाल सकते हो, अरे दौड़ के निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि ये हो गया √3a, ये हो गया 2a, कैंसिल, √3/2। अभी कुछ देर पहले कहाँ इन वैल्यूज़ को रट रहे थे, अभी अभी इन वैल्यूज़ को समझ रहे हैं। साइन 60 पता चल गया, सिंपली हम लोग कॉस 60 पता कर सकते हैं, टैन 60 पता कर सकते हैं। लेकिन प्रश्न था भैया अगर साइन ऑफ 30 पता करना हो तो क्या करें, है ना? उसके लिए कुछ नहीं करना है आपको, ट्राइंगल को अलग आंखों से देखना है। ये एंगल 30 है इसके सामने, और ये ट्राइंगल 90 डिग्री ट्राइंगल है। इस एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, ये बेस। तो साइन 30 क्या हुआ, सामने वाला डिवाइडेड बाय बी, यानी a/2 है, यानी 1/2। ऐसे ही कॉस, ऐसे ही टैन, ऐसे ही सब निकाल सकते हो। 0 डिग्री और 90 डिग्री का खेल बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसको दिखाने के लिए मुझको आपको एक अलग चीज़ को लाना पड़ेगा अपने सामने, जो कि मैं लेके आ रहा हूँ। जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा प्रॉब्लम साथ। ये रहा, ये रहा हमारा ट्राइंगल। ठीक, याद रखना क्या, कि इस ट्राइंगल में ये 90, ये जो भी है हमें नहीं पता, हमें पता करना है इसका डिवाइड बाय इसका, जब एंगल 0 हो जाए। तो ये रहा अभी एंगल के लिए। ठीक, जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं ध्यान दो, ये जो हमारा लेंथ ए बी था, ये देखो धीमे धीमे छोटा होता जाएगा। जैसे जैसे हमारा ये एंगल जो है वो 0 होता जाएगा, वैसे वैसे छोटा होता जाएगा। और ये छोटा होते होते कहाँ पहुँच जाएगा, 0 पे पहुँच जाएगा, है ना दोस्त? तो ये ए बी जब 0 पे पहुँच गया, तो 0 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस की जो भी वैल्यू, वो 0 ही आएगी। तो साइन 0 इसलिए 0 होता है। कोई तकलीफ नहीं, तकलीफ गुड। लेकिन कॉस 0 कितना होता है, तो ध्यान से देखो कॉस 0 क्या होता है, बेस, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, है ना? तो जब हम धीमे धीमे नीचे आ रहे हैं, एंगल को 0 कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं हमारा जो हाइपोटेनस है, जो कि ये लाइन मूव कर रही है, देख सकते हो ग्रे वाली लाइन, ये खुद देखो अभी AC के बराबर है। अब छोटा हो गया, और 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 छोटा हो गया, अल्टीमेटली 0 होने पे किसके बराबर है? अरे तुमको पता चल गया, ये तो CB के बराबर है। तो अगर बेस के बराबर ही हो गया है, और कॉस होता है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, तो बेस तो B रहा, लेकिन हाइपोटेनस भी B बन गया, तो B/B क्या हो गया, 1 हो गया। समझदार तो हो तुम लोग, समझ भी जा रहे हो, क्या ही अच्छी बात है। ये हो गया आपका सिंपल फंडा। लेकिन 90 डिग्री की बात करनी तो 90 डिग्री की बात करने की कोशिश करते हैं। आ, नहीं, ये काम नहीं बनेगा, नहीं भी काम नहीं बनेगा। ये काम बनेगा, अभी देख लो नीचे एंगल, यहाँ पे एंगल ये जो है 90 बन रहा है। ठीक, अब ये एंगल हम घटाते जा रहे हैं धीमे 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 धीमे, जैसे जैसे ये देखो ट्राइंगल को देखते जाओ, जहाँ पे लाइन मीट करे वहाँ पे नया ट्राइंगल मान लो, पॉइंट ए है, नहीं अल्फा है। अल्फा पॉइंट जैसे जैसे हम पास लाते जा रहे हैं, वैसे वैसे ये एंगल हमारा क्या हो रहा है, ये एंगल जो भी था ये धीमे धीमे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, है ना? बढ़ता जा रहा है, 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 और इस पॉइंट पे आके 90 हो गया। तो इस पॉइंट पे आके 90 हो गया, तो हमारा कॉस 90 की वैल्यू कैलकुलेट करें, तो हमारा बेस कितना बचा, बेस और छोटा और छोटा और छोटा और छोटा और छोटा, 0 के बराबर। सेम रीजनिंग, बेस 0, हाइपोटेनस कुछ भी है,
वैसे तो ए बी के बराबर ही हो जाएगा हाइपोटेनस, बट डिवाइडेड बाय जीरो, सॉरी, या बेस बाय हाइपोटेनस, जीरो डिवाइडेड बाय समथिंग इज जीरो। और साइन की बात करें तो साइन को देखो तो वो तो फिक्स है, ए बी के बराबर ही है, मतलब सॉरी, मतलब अ, जो साइन है वो क्या है, ये वाला साइड डिवाइडेड बाय ये हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस अभी ए सी है, और धीमे 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 जैसे जैसे हमारा एंगल 90 को अप्रोच कर रहा है, वैसे वैसे हमारा हाइपोटेनस लेंथ ए बी को अप्रोच कर रहा है, और ये ए बी को फाइनली पहुंच भी गया 90 पर। तो ए बी बाई ए बी इज नथिंग बट 1, सिंपल। तो ये था हमारा पूरा का पूरा फंडा। कैसे एंगल्स आए याद करना है, याद कर लो, समझना है समझ लो, आपके ऊपर है दोनों। बाद में आप ये नहीं कह सकते कि चीज़ें समझाई नहीं गई। ओके, यही सारी चीज़ें हैं, इसीलिए मैं कहता हूँ एनसीईआरटीज आर फन। कहाँ इन वैल्यूज़ को याद करे थे, कहाँ अभी हमने साइन और कॉस की सारी वैल्यूज निकाल ली, 0, 30, 45, 60, 90, और बाकी निकाल सकते हैं। अब आगे चलते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का टॉपिक। अब पता चला, आप देखो, अब याद करते हैं, हम लोगों ने शुरुआत की थी रेशियोज से, और कैसे रेशियोज को धीमे 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 हमने रिलेट करने की कोशिश करी एंगल से। तो हमने पाया कि 45, 30, 60, 90 और 0 डिग्री होती है। हम इन रेशियोज को कितने अच्छे से डिफाइन कर पा रहे थे। क्या हम बाकी के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, आप उसको डिफाइन, कोई दिक्कत नहीं है। इट्स जस्ट वो थोड़े से क्रिटिकल ज़्यादा है, वो इतनी ईजिली नहीं प्रूव हो जाएंगे जितनी ईजिली ये प्रूव होगा। क्यों? क्योंकि वो ऐसे सिंपल ट्राइंगल प्रॉपर्टीज से रूल आउट नहीं किए जा पाएंगे। ओके, so my friends, we will talk about trigonometric ratios of complementary angles. Yes, you heard it right. एक ट्राइंगल है ऐसा, 90 डिग्री है, एंगल ए है, एंगल बी है, एंगल सी। ओके, नाउ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट करना, मतलब किसी के साथ में होना। ओके, तो बेसिकली मैथ्स में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स उन्हें कहते हैं जो कि जिनका सम ए प्लस बी हमारा सम ऑफ दोज एंगल्स इज नथिंग बट 90 डिग्री। ऐसे ही सप्लीमेंट्री जो होते हैं जिसमें ए प्लस बी का सम 180 डिग्री हो जाए। फिलहाल हम कॉम्प्लीमेंट्री की बात कर रहे हैं। ओके, सो कुछ चीज़ें मैं सीधे सीधे बता देता हूँ। साइन 90 डिग्री माइनस ए इज नथिंग बट इक्वल टू कॉस ए। कॉस 90 डिग्री माइनस ए इज नथिंग बट इक्वल टू साइन ए। tan of complementary angle is nothing but equal to cot A, and cot of 90 degree angle is nothing but equal to tan A, and sec of 90 degree angle minus A is nothing but cosec A, and cosec of 90 degree angle is nothing but sec A. But why? चाहो तो इन प्रॉपर्टीज को ऐसे याद कर लो कि हाँ ये प्रॉपर्टीज है, काम करती है इस बात। चाहो तो समझ लो, ये था याद करने वाला पोर्शन, ये रही किताब, लिखे हुए हैं, याद कर लो, बात खत्म हो गई। जानना है क्यों ऐसे होता है, तो आओ चलते हैं इस सेक्शन में। ट्राइंगल की बात हो ही रही है, एंगल ए है, एंगल बी है, एंगल सी है। बस मुझे इतना बता दो, एंगल ए प्लस एंगल बी यानी 90 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 होगा। बोलो। तो एंगल सी यानी कि ये एंगल कितना हो जाएगा? सबको उधर भेज दिया तो 180 में से 90 गया, 90, 90 में से हो गया तो 90 डिग्री माइनस होगा क्या? तो एंगल सी इज नथिंग बट एंगल 90 डिग्री माइनस एंगल, मतलब एंगल सी कुछ और नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है एंगल ए का इस केस में, है ना। अब बात इसकी हो रही है तो तुम खुद देख लो ना कि क्यों क्या है भाई। साइन ऑफ
एंगल ए क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, है ना, सामने वाला एंगल के और हाइपोटेनस से डिवाइड करो, यही साइन होता है। कॉस क्या होता है? कॉस ऑफ एंगल ए होता है साथ वाला एंगल के और हाइपोटेनस को डिवाइड कर दो, ए बी अपॉन ए सी हो गया। ये हो गया तुम्हारा बी सी अपॉन ए सी। पर एंगल सी, साइन ऑफ एंगल सी क्या होगा? सोचा है कभी? ये रहा एंगल, तो इसके सामने वाला यानी ए बी डिवाइड बाय ए सी, ए बी अपॉन ए सी। तो साइन ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, कॉस ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। तो डेफिनेटली कॉस ए इज इक्वल टू साइन सी, साइन कॉस ए इज इक्वल टू साइन सी। और साइन सी इज व्हाट? साइन 90 माइनस सी इज व्हाट? 90 माइनस एंगल। तो साइन ऑफ एंगल 90, 90 माइनस एंगल ए इज इक्वल टू कॉस ए। प्रूव हो गया। ऐसे ही सब प्रूव होता है, चेक कर लो खुद। साइन और कॉस प्रूव कर लो, सब जगह इनको रिप्लेस कर लो, इन सब की जगह, काम हो गया तुम्हारा, बात खत्म। सारा काम तो साइन और कॉस प्रूव करने का, और वो मैं आपको करके दे देता हूँ, आप लोगों को कुछ करना ही नहीं पड़ता। बहुत सुविधा है, दिमाग नहीं लगाना चाहते बच्चे आजकल के। चलिए चलो, चूंकि ये सब कुछ बता दिया गया है, तो ये देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के आते ही अब हम लोग और कुछ ऐसे ही खुराफाती आइडियाज लगा के कुछ और भी वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी हमें 0, 9, 30, 45, 60, 90 पता थे, अब हम साइन 18 भी पता कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि साइन, ओके साइन 18 नहीं पता कर सकते, गलती हो गई सर। बट हाँ, साइन 18 बाई कॉस 72 जरूर पता कर सकते हैं। और क्या पता कर सकते हैं, छोड़िए, मेरे से गलती हो गई, मुझे लगता है पता कर सकते हैं, मेरे से गलती नहीं हुई है पूरी तरह, बट ये है कि बस थोड़ा ज़्यादा चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, ढूंढना पड़ेगा कुछ ना कुछ रास्ता, मिल तो जाएगा ही जाएगा, मेरा ऐसा मानना है। बाकी देखते हैं। एनीवेज, अब इन्हीं इन लोग के पास कोई काम नहीं होता ब्रेन टीज करने के अलावा, तो ये सारे ब्रेन टीजर्स इन्होंने बना रखे हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का यूज़ करके। फाइनली आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे और बात खत्म करते हैं। सीधे सीधे आइडेंटिटी बताऊंगा मैं, कुछ नहीं बताऊंगा और चला जाऊंगा। क्यों? क्योंकि साइन ऑफ स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, बात खत्म। इससे आप बाकी दो आइडेंटिटीज पता लगा सकते हैं, जो कि होती है 1 प्लस टैन स्क्वायर ऑफ थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और फाइनल आइडेंटिटी होती है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पर स्क्वायर का मतलब होता है कॉसेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ओह, मेरा कॉपी दिख ही रहा है आपको, सॉरी, कॉसेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, या सिंपली कॉसेक थीटा का स्क्वायर, बात बराबर है, तीनों में से कुछ भी कह सकते हैं। ओके, ओके सॉरी, या इनसे इनको निकाल सकते हो, सिंपली साइन से डिवाइड कर दो, साइन साइन 1 हो जाएगा, कॉस में साइन डिवाइड कर दिया तो कॉट आ जाएगा, कॉस अपॉन साइन इज कॉट, और 1 अपॉन कॉस इज कॉसेक, 1 अपॉन साइन इज कॉसेक। वैसे ही अगर कॉस से डिवाइड कर दिया तो साइन अपॉन कॉस इज टैन, कॉस अपॉन कॉस इज 1 एंड 1 अपॉन कॉस इज सेक। ये दोनों आइडेंटिटी आ गई। ये आइडेंटिटी प्रूफ करने के लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी पड़ेगी, जो कि कहती है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यूज करना, थोड़ा सा अपना ब्रेन आप भी टीज करिए, मैं तो सब बता ही दूंगा। माय फ्रेंड्स, अब इनके अलग अलग मैनिपुलेशन करने हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब देखो, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और साथ में कॉम्प्लीमेंट्री वाला कॉन्सेप्ट और साथ में आइडेंटिटीज का कॉन्सेप्ट एक साथ लगाकर यहाँ पर ये फंक्शन, ये इसको कैलकुलेट करना, निकालना है। तो ये सारी एक्सरसाइजेज का कुछ नहीं है, बेसिक ऑपरेशन की, कुछ भी नहीं होती है। इस चैप्टर में जितना कुछ था, इसी के साथ हमने पूरी क्लास 10 की ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट समाप्त कर दिया है। उसका आप एप्लीकेशन पार्ट अब यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पर आपको स्पेसिफिक वैल्यूज भी होंगी, साइन 0, 30, 45, 90 का सबसे ज़्यादा यूज़ होगा। अलग अलग बिल्डिंग, अलग अलग हाइट, उनको कैलकुलेट करना होगा। बस इसी के साथ ये क्लास खत्म होती है, जहाँ पर अभी अभी हम लोगों ने विद इन एन आवर क्लास, उसमें भी मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें प्रूफ्स बताने लग गया, चीज़ों को समझाने लग गया, तो तब 1 घंटे के आसपास लग गया, एंड क्लास 10 खत्म होता है इसी के साथ।
अगर ना करता वो सारी चीज़ें तो डेफिनेटली इससे भी ईजी हो जाता। जितना चाहें आप लोग, अगर आपको जल्दी है तो सिंपली आप लोग सारे के सारे प्रूफ्स पार्ट को मिस कर सकते हैं और सिंपली कंसेप्ट को ग्रैब कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो of class 10th. Now we will be moving on with the class 11th trigonometry. मैं रिकैप एक बार दिखा देता हूँ, मैं रिकैप बोलना सर, क्या होने वाला है इस चैप्टर में वो दिखा देता हूँ एक बार। And this time I'm not going to prove everything I guess in this chapter because these proofs are not going to be itna simple single word, but these are all the uh, you can see formulas. रेडियन मेजर को डिग्री मेजर करना है कैसे, दो तरीके से एंगल मेजर हो सकते हैं रेडियन और डिग्रीज में। डिग्रीज यू नो 180 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ओके। एंड देन 60 डिग्री, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। बेसिक लॉजिक क्लॉक वाला यहाँ चलता है। एंड रेडियंस क्या होता है, इसका सिंपल रिलेशन जो आपको याद रखना है वो ये, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन होता है, यानी पाई का रेडियन की जो, जब भी एंगल पाई में यूज होगा तो पाई रेडियन का मतलब होगा 180 डिग्री। तो दैट सिंपल थिंग। उसके अलावा ये तो बेसिक आइडेंटिटी, कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स वन, ये तीन आ गई। फिर ये कुछ हैं, साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, कॉस माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, ये जो है थोड़ा बहुत यूज होती हैं। कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये भी एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, प्रूव करना बहुत ही ईजी है, बट ठीक है। फिर कॉस ए माइनस बी इज कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, कॉस 90 माइनस या पाई बाई टू इज नथिंग बट 90 वाई, क्योंकि पाई को मैंने अभी भी बोला 180 डिग्री लिख सकते हो, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो दिस इज कॉस 90 डिग्री माइनस एक्स, और ये रेडियन फॉर्म में लिखा है तो कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स। तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, क्या बताया था अभी अभी हम लोगों ने, साइन थीटा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला कंसेप्ट, क्या रिमेंबर, तो बस वही थी आया, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। फिर साइन का ए प्लस बी फॉर्म, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, ठीक है। साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, कॉस 90 माइनस थीटा, सॉरी 90 प्लस थीटा इज माइनस साइन एक्स। ये जो चीज़ें हैं ये क्वाड्रेंट जब समझाए जाएंगे वहाँ पर होता है, बट इट जस्ट बेसिक ऐसे याद कर सकते हो और कुछ खास चीज़ें नहीं आएंगे हमको, एटलीस्ट नॉट इन लिमिट्स एंड ऑल दैट। Right now I'm just talking specifically to myself, all others can skip this thing, until and unless you want to know the things which are important in life. If none of the angles x and y, x plus minus, okay, then हाँ ये a plus b का फॉर्मूला, अगर साइन और कॉस का एक बार फॉर्मूला आपने याद कर लिया तो ये वाला फॉर्मूला इजीली ड्राइव कर सकते हो, सिंपल है, क्योंकि हमें पता है tan a इज इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस बी होता है, तो बस tan a प्लस बी हो जाएगा कॉस ए प्लस बी अपॉन साइन ए प्लस बी अपॉन कॉस ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी अपॉन कॉस ए प्लस बी जब लगाओगे तो ये फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो, और ऐसे ए माइनस बी के लिए डिराइव कर सकते हो, तो बस हमें डिराइव करने होंगे ये फॉर्मूले और ये फॉर्मूला, बड़ा इंटरेस्टिंग डेरिवेशन होता है। ऐसे ही फिर कॉट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि टैन और कॉट का रिलेशन पता है, और सिंपली साइन और कॉट का रिलेशन पता है, क्या दिक्कत है। कॉस टू एक्स कर सकते हो सिंपली कॉस ए प्लस कॉस ए करके, क्यों, कॉस एक्स प्लस एक्स कितना हो गया, मतलब सिंपल देखो, कॉस एक्स प्लस वाई का ये फॉर्मूला है, तो कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ठीक। एक्स प्लस एक्स रखो तो ये हो जाएगा कॉस एक्स एंड कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो ये क्या दिया, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर। अब इसको आगे भी कर सकते हो, कैसे, कॉस साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो, वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, वो आइडेंटिटी याद करो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन, तो वहाँ से साइन स्क्वायर एस स्क्वायर एक्स प्लस सी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन, तो एस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन माइनस सी स्क्वायर एक्स, इसको यहाँ रख दो तो माइनस माइनस हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस, तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस, ऐसे ये निकाल सकते हैं, ऐसे निकाल सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं। बस ये दो में ही है, ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, और साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। ट्रस्ट में मैंने इन्हीं को याद किया था और हमेशा इसे ड्राइव करता था, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता था, बट मुझे प्रूफ याद हो गए थे, मुझे फॉर्मूले याद हो गए थे, उनके डेरिवेशन याद हो गए थे, और मज़ा बहुत आती थी, क्योंकि ज़्यादा कुछ याद नहीं करना पड़ता था, और प्राउड बहुत फील होता था, क्योंकि कुछ अलग करना हूँ सिंपल यार,
इंसानी इमोशन से घिरा हुआ है। साइन टू एक्स की सेम है, साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले में चिपका दो, tan का भी 3x के लिए कर सकते हो, साइन टू एक्स प्लस एक्स करके कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। कॉस 3x tan 3x के लिए भी कर सकते हो। कॉट कॉस एक्स प्लस कॉस वाई इज इक्वल टू टू कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन टू एंड कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन टू, ये भी कहीं ना कहीं इसी से डिराइव होता है, किया जा सकता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। इनका भी वही हाल है, देख रहे हो, खुद ही देख लो, कॉस एक्स प्लस वाई और कॉस एक्स माइनस वाई है, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो निकल आएगा ऐसा कुछ। हाँ, साइन एक्स जीरोज होता है कब, जब एन पाई, मतलब बेसिक बात यह है कि जब क्वाड्रेंट के अंदर एन पाई, मतलब जो पाई वैल्यूज के हिसाब से मूव करो, एन की वैल्यू जीरो डालो तो पाई इंटू जीरो साइन जीरो जीरो ही होता है, हमें पता है। ठीक है, सीधे एन की वैल्यू वन डालो तो सीधे घूम के यहाँ चले आएंगे, तो यहाँ चले आओगे तो अगेन तुम इस लाइन पे आ गए, तो परपेंडिकुलर कुछ बचा नहीं तो जीरो हो गया। फिर थ्री डालोगे तो थ्री पाई पे आ जाओगे, है ना। थ्री पाई पे मतलब क्या, 180, 180 प्लस 180 प्लस 180, फिर यहीं आ जाओगे। फोर पाई डालोगे तो 180 प्लस 180 प्लस 180 प्लस 180, ऐसे करके घूमते रहोगे, घूम के आओगे कहाँ, इसी लाइन पे आओगे आप, इसलिए ये हमेशा वैलिड होता है। ऐसे ही कॉस एक्स के लिए वैलिड होता है, इसमें टू एन प्लस में मतलब ऑड वैल्यूज चलती हैं, क्यों, क्योंकि जब भी तुम इस एक्सेस पे आ जाओगे तब भी कॉस जीरोज हो जाएंगे हमेशा। देख के देख लो, कॉस टू एन प्लस एन की वैल्यू जीरो डालो तो कॉस पाई बाई टू मतलब कॉस 90 जीरो, ठीक। टू की वैल्यू वन डाल दिया तो थ्री प्लस वन फोर, तो फोर पाई बाई टू मतलब टू टू कैंसिल पाई बाई टू, व्हाट इज दिस नाउ, नहीं थ्री पाई बाई टू, सॉरी यार, थ्री पाई बाई टू का मतलब क्या, अ, तीन बार 90 डिग्री चलना है, तो एक बार चले, दो बार चले, तीन बार चले, तो कहाँ आ गए, 90 90 90, इस पे आ गए। ठीक है, तो ये ऑड वैल्यूज में 90 घुमाता रहेगा, इस वजह से ये हमेशा आपको इसी इसी एक्सेस पे दिखाई देगा, इस वजह से कॉस का जब भी इस फॉर्म में लिख सकते हो कॉस को, तब समझ लो वो जीरो रहेगा। साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई अगर एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन एन, इसी का कुछ रिलेशन होगा, थोड़ा बहुत देखेंगे निकाल जाएगा, और यूज भी नहीं आता यार उतना ज़्यादा यहाँ कहीं, तुम्हें इससे बेटर सिंपल वो याद रहेगा कि हाँ साइन का फंक्शन ऐसे होता है, जीरो से शुरू होता है, वन जीरो वन ऐसे करके मिलता है, और कॉस का फंक्शन जीरो से शुरू होता है, कॉस जीरो जीरो होता है, तो वो ऐसे, इनको ही याद कर लोगे चीज़ें याद आएंगी, इनको कभी भी नहीं आएगा, सीधे ग्राफ को याद करो कि हाँ इसमें क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, जब हम इतने पे चले जाएंगे तो बात खत्म। ये तो यहाँ पर ग्राफ से लोग फेमिलियर नहीं है, और ग्राफ पहली बार बताए गए हैं, इस वजह से थोड़ा सा चीज़ें बताई जाती हैं इस तरीके से। ये रिकैप था क्लास 11th के पूरे ट्रिग्नोमेट्री का। अ, बस इतना ही है क्लास 11th के ट्रिग्नोमेट्री में, और कुछ है नहीं, यही है जो फॉर्मूले जिनकी बात हो रही थी, जो यूज़ आ सकते हैं, इसके अलावा जो यूज़ आता है वो सब डिफरेंशिएशन की बात होती है। हाँ, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री जरूर है जो देखने लायक है, उसके फॉर्मूले भी यूज़ आएंगे तुम्हारी एटलीस्ट जब तुम वो करोगे, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री क्लास 12th में, उसके फॉर्मूले बस देख ही लेते हैं, शायद कुछ काम बन जाए।